Hey everyone, welcome back to Code with Ajay Rajput. In this previous video, we learned how a variable can store only one value. Then we moved on to arrays, which can store multiple values of the same type. But arrays have their own limitations like fixed size and limited functionality. That's why we introduced the idea of collection. So in this video, let's dive deeper and understand what is the difference between array and collection. So let's get started. So what is the first difference? Array has a fixed size. Okay, I will create the one array. So this is an array int a new int with the size of 5. Imagine if you want to store 6 value in the array, then what will you do? You have to create one more array if you want to store 6th value. You cannot increase and decrease the size of the array. Once you define the size of the array, we cannot increase and decrease the size. Okay, to overcome this problem we use collection, because in collection no need to define the size of the collection. How much we want to store data we can store, because collection is a ग्लोबल. ठीक है, कलेक्शन ग्लोबल है, उसमें हमें साइज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. जितने हम डेटा चाहते हैं उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ए ग्लोबल. collection is a global. Collection is global. What is the second difference? In memory point of view, array is not recommended. Why? Because suppose we created the array. We created the array int b new int with the size of 5. Okay, suppose we added only 2 values. And what about remaining memory? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू को स्टोर किया है और हमने एरे क्रिएटेड किया है 5 साइज का. so, हमने 2 ही वैल्यू स्टोर की, देन 5 जो 3 वैल्यू की मेमोरी बच गई वो तो वेस्ट हो जाएगी, राइट? और कलेक्शन में क्या है कि जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं कलेक्शन में, वो उसी टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है. ठीक है, दैट्स वाई एरे इज नॉट रिकमेंडेड इन मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सेकंड डिफरेंस, एरे इज नॉट रिकमेंडेड in memory point of view. Recommended in memory point of view. Collection is recommended. Collection is. ठीक है. Third difference, in array we can store only homogeneous data. In array we can store only homogeneous data, means we can store only same type of data. Suppose we created the array int. Okay, we can store only integer data, we cannot store string data type. समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? अगर हमने array को इंटीजर क्रिएट किया है तो हम इंट ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें स्ट्रिंग डेटा को स्टोर नहीं कर सकते. बट अगर आपने ट्राई किया स्टोर करने के लिए, मतलब आप स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करना चाहते हो इंट में, तो आपको एरर मिल जाएगा. ये खाली सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है. ठीक है, थर्ड डिफरेंस, एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस डेटा. कैन स्टोर both homogeneous and heterogeneous. ठीक है. In performance, which is good between array and collection, which is good, array and collection? In performance, array is good. Why? Because suppose करो हमने array create किया, यहाँ पे array create किया, ठीक है, we created the array.
ठीक है, क्या हमने जो ये वैल्यू स्टोर की है एरे में, क्या हमने कोई मेथड कॉल कराया? नहीं कराया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमने डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करा दिया। बट इन कलेक्शन में जब भी हम वैल्यू को स्टोर करते हैं कलेक्शन में, देन वी नीड टू कॉल द मेथड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इफ यू वांट टू स्टोर द वैल्यू इन द कलेक्शन, वी नीड टू कॉल द मेथड। और जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे तो एक स्टैक क्रिएट होगी स्टैक एरिया में, वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। और सपोज करो मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट क्रिएट की, ठीक है, ओपी लिस्ट न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टोर कराया लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 को स्टोर कराया, ठीक है। जो ये 1 है हमने इंट वैल्यू पास की है, बट एरे लिस्ट ओनली कैन स्टोर ओनली नॉन प्रिमिटिव डेटा, मतलब ये ऑब्जेक्ट को ही स्टोर करता है। तो इंटरनली क्या करता है, ये इंटरनली क्या करता है, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग का यूज करता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इंटरनली यूज ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, इट कन्वर्ट द इन डेटा इनटू इंटीजर, मतलब प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें भी ये टाइम लगाता है। समझ रहे हो क्या क्या कर रहा है ये? एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए पहले मेथड को कॉल करा रहा है, फिर मेथड कॉल करा रहा है तो एक स्टैक क्रिएट हो रही है स्टैक एरिया में, और जब हम इंट वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं तो ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का यूज कर रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट में। तो कितना टाइम ले रहा है? दैट्स वाई एरे इज गुड इन द परफॉर्मेंस। डिफरेंस पता चल गया होगा शायद तुम्हें। एरे इज गुड इन परफॉर्मेंस, एरे इज गुड इन परफॉर्मेंस, ठीक है। कलेक्शन इज नॉट, कलेक्शन इज नॉट, ठीक है। हम एरे में फिफ्थ डिफरेंस, इन एरे वी कैन स्टोर ओनली प्रिमिटिव डेटा, नॉन प्रिमिटिव डेटा बोथ वी कैन स्टोर इन द एरे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? एरे में हम प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा दोनों को स्टोर कर सकते हैं, बट कलेक्शन में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने इंट किया, इसमें हम ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं और प्रिमिटिव डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, बट कलेक्शन में हम खाली नॉन प्रिमिटिव डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, मैंने 1 को पास किया, बट क्या कर रहा है, इट इटरली यूज ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। समझ रहे हो? ये कन्वर्ट कर देता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। इट डजंट अलो प्रिमिटिव डेटा। ओके, दैट मीन्स array can store both primitive and non-primitive data types. Primitive data types. But collection can store only non-primitive data types. ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। आप इनको राइट भी कर सकते हो आपकी नोटबुक में। जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन एरे एंड कलेक्शन, यू कैन टेल दिस ऑल द डिफरेंसेस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, so you will get the notification whenever I will share the new video. Okay, bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।